हेलो एवरीवन। आईएएस विंग्स ले आया है आपके लिए इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शंस। जैसे कि आप जानते हैं कि इन द प्रीवियस सेशन वी हैव कंप्लीटेड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। और एक और टाइप की क्वेश्चन यूपीएससी बहुत ज़्यादा पूछता है, दैट इज टर्म बेस्ड। बट हमें पता नहीं है वो कहाँ से पढ़ना है, तो मैं लाया हूँ लिमिटेड सोर्स में टू अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शन जो यूपीएससी में आने के चांसेस होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। और इसे हमने पीरियड वाइज और फेज वाइज बनाया सो दैट यू कैन रिमेंबर कि कौन से फेज के टाइम या कौन से पीरियड के टाइम ये टर्म्स यूज किए गए थे। इफ द स्टेटमेंट कम्स इन द फॉर्म ऑफ कि इट बिलोंग टू दिस पीरियड और दिस डायनेस्टी, तो आप उस पैटर्न में आप इसको याद कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद पैलियोलिथिक पीरियड। The first is Chalcolithic period. So it spanned around 3000 to 500 BCE. So it was very primitive type of culture, and it was parallel to early Harappan civilization. So it had in that there was one Aharbanas culture. It was a Chalcolithic culture located in present day Rajasthan. Ganeshwar also was part of it. It was characterized by distinct black and red ware pottery, early use of copper tools, and evidence of agriculture and settled village life. So Chalcolithic period को there are four locations जिसे आपको याद रखना है, and there is a mnemonic called कमजोर, K for Kayat, A for Ahar, M for Malwa in Madhya Pradesh and Rajasthan region, and then there is Jorwe, which is found in present day Maharashtra. So do remember Chalcolithic के चार phases, चार locations, और ये मैप में भी बना है. दिस इज कायत, दिस इज आहर, हियर इट इज मालवा, एंड दिस इज जोरवे. अब हरप्पन हरप्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में आ जाते हैं. देर इज सिटाडेल. सिटाडेल हमें पता है, अ फोर्ट्रेस टिपिकली वन ऑन हाई ग्राउंड अबव अ सिटी. देर इज ओनली वन आईवीसी साइट जहाँ सिटाडेल प्रेजेंट नहीं है. ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. देन देर इज गबरबंद. ये नाम याद रखिए, गबरबंद. इट इज लार्ज ओल्ड डैम. मेलुआ, एंशिएंट नेम गिवन टू इंडस रीजन या आईवीसी रीजन को बोला जाता है. एंड ये नाम हमें मिला गया है मेसोपोटामियम और दूसरे साइट्स के लोकेशन पे जहाँ उनकी बुक्स में मेलुहा का मेंशन्ड है. एंड देर इज दिलमुन एंड मागन या मगन. These were important trading partners and geographical location in ancient world. Dilmun was centered around Bahrain and Magan और Magan encompass करता था ओमान पेनिनसुला को. And they were known for their maritime capabilities and trade with Mesopotamia and IVC civilization. So Dilmun on Magan, Dilmun से Bahrain and Magan is Oman Peninsula. And there is pictographic, we all know, inscription. Logosyllabic, a writing system that combines logograms, symbols representing words or morphemes, and syllabic signs to convey meaning and sound. The Harappan script is argued to be either pictographic or logosyllabic, or a combination of both. As it is undeciphered yet, so it is difficult to say what kind of script actually Harappan civilization had. Then there is Bostrofedon, an ancient writing style. इसमें we start from right to left, then again from left to right, then right to left. तो इस पैटर्न में लिखा जाता है in Bostrofedon. Do remember this term, Bostrofedon. It is a type of writing style, ancient writing style. Cire Purdue or Cire Purdue. It is a process by which a duplicate metal sculpture is cast from an original sculpture. बेसिकली एक स्कल्पचर होगा, उसको मेल्ट किया जाता है, एंड अगेन अ न्यू
sculpture is produced out of it. So it is called Cire Purdue. Remember this term, and it is related to IVC site. Very important, IVC के टाइम को ये बिलोंग करता है. Then we come to early Vedic or Rig Vedic period. So the first is सप्त सिंधु. तो हमें सप्त सिंधु तो हमें पता है, जैसे सिंधु इज इंडस एंड व्हाट वर देयर अदर 6 ट्रिब्यूटरीज जिसको मिलाकर वो सप्त सिंधु कहा जाता है. तो फर्स्ट इज वितस्ता, दैट इज झेलम, ये नाम याद रखिएगा. अस्किनी चेनाब, विपास और विपासा दैट इज बियास, परुषिनी इज रावी, सुतुद्री इज सतलज एंड सरस्वती इज एन एंशियंट रिवर मेंशन इन वैदिक टेक्स्ट. तो इन सातों को मिलाकर सप्त सिंधु बोला जाता है. देन देयर आर सभा, सभा, समिति, विधाता. ये तीनों याद रखिए, इंपॉर्टेंट है बिकॉज टर्म बेस्ड नहीं बट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस पे ऑलरेडी पूछा है. देयर इज हाई चांसेस कि इसको वापस पूछेगा यूपीएससी. सभा is an assembly of elders or prominent individuals primarily involved in decision making and governance, and usually it is considered decision of sabha was compulsory, मतलब follow करना ही है, and women were also part of it. Samiti was a broader assembly that included common people in today's time like Gram Sabha, playing a role in advising and consenting to the decisions made by the decision making authorities, that is Sabha. फिर आता है विधाता, an early Vedic tribal assembly with religious and social functions often associated with rituals and community welfare. Then there is a term called panis, a group of wealthy merchants often seen as traders who controlled trade. बेसिकली ट्रेड को कंट्रोल करने वाले लोगों को पानीस बोलते हैं. नाउ लेट अस सी लेटर वैदिक पीरियड. पहले तो कुछ टर्म्स में आप मुझे लेटर वैदिक पीरियड के फीचर्स बताएंगे. व्हाट वर द फीचर्स ऑफ लेटर वैदिक पीरियड? Now let us see the administrative terms. First is Akshvapa, that is accountant. Bali Sadhaka, Bali was a tax. In early Vedic period it was voluntary, कि लोग खुद से दे देते थे to the protector. But in later Vedic period it became compulsory. और किंग ने ऑफिसर्स रखे थे फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस और बलि, दैट वाज बलि साधका या बाली साधका. देन देयर इज ग्रामणी, विलेज चीफ हुज फंक्शन एज लीडर ऑफ ट्राइबल रेजिमेंट. नाम से समझ आता है ग्राम है मतलब समथिंग रिलेटेड टू अ विलेज. देन देयर इज शता, कीपर ऑफ किंग्स हाउस होल्ड. मध्यमासी इज अ मीडिएटर इन द डिस्प्यूट्स. देन देयर इज पुशान. पुशान को आप थोड़ा सा अगर रिलेट करो तो इट बिकम्स पशु से रिलेटेड समथिंग. पशु इज एनिमल, सो हियर गार्डियन ऑफ फूड, हर्डर, स्ट्रे कैटल्स. नाउ लेट अस सी मोर अदर टर्म्स. उर्वरा, that is cultivated land. UPSC tends to ask regarding the lands. So do remember Urvara, it is cultivated land during later Vedic period. And there is Vrajpati, officer in charge of pasture land. Vrihi, it has been asked by UPSC, it is rice. So other than Vrihi, एक दो चीज और हमें पता होना चाहिए, that is Yava, जो बार्ले को बोला जाता था. अवल, वेल्स को बोला जाता था. अयास एंड हिरण्यका. डू रिमेंबर कॉपर, और कॉपर होता है अयास और हिरण्यका इज गोल्ड स्मिथ.
Gogna. It are the guests during the later Vedic age who were fed on cattle. ठीक है, तो गोगना इज एन इम्पोर्टेंट टर्म अगेन, गेस्ट की बात होती है यहाँ पे। एंड देयर इज द्विजा, ट्वाइस बॉर्न एज पर वर्ना सिस्टम। द्विजा सिर्फ 3 वर्णास के लिए अलाउड था, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य। इसमें सेक्रेड थ्रेड पहनाया जाता था, एंड दिस सेरेमनी इज कॉल्ड एज द्विजा, लिटरली मीन्स ट्वाइस बॉर्न, ही इज रिबॉर्न स्पिरिचुअली सेकेंड टाइम। देन देयर इज गविष्ठी, सर्च और वॉर और रेड फॉर काउस। एज यू ऑल नो, वैदिक पीरियड में काउस वर कंसिडर्ड सुप्रीम, एंड हु हैड मोस्ट नंबर ऑफ काउस वर कंसिडर्ड वेरी वेल्दी। तो वॉर भी काउस के लिए होती थी, काउस एंड लैंड के लिए होती थी मोस्टली। तो गविष्ठी बोलते थे वॉर और रेड फॉर काउस। देन देयर इज राजसूय। राजसूय बेसिकली राजसूय यज्ञ performed by kings to legitimize their sovereignty, proclaim imperial authority and establish dominance over neighboring kingdom। एक और यज्ञ हुआ करता था रिगार्डिंग हॉर्स, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देन देयर इज संहिता, जिसको वैदिक हिम्स का कलेक्शन बोला जाता है। सो डू रिमेंबर, संहिता इज अ कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स। तो अर्ली आईवीसी सॉरी अर्ली वैदिक फेज में आउट ऑफ 4 कौन सा वेद बना था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड व्हाट वर द लेटर 3 दैट वर मेड, ये आप चारों नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन द प्रीमोरियन फेज और एज ऑफ महाजनपदास, यहाँ पे कॉइन्स यूज होते थे दैट वर निष्का एंड सतमना। सो रिमेंबर निष्का एंड सतमना। एंड आई वुड सजेस्ट यू गाइस, ये डॉक्यूमेंट वापस खोल के पढ़ने से अच्छा अभी हम लेक्चर के साथ साथ ही याद करना शुरू कर दीजिए, और हैव अ फेयर आइडिया कि ये टर्म क्यों है, क्या है, किस लिए यूज हो रहा है। जस्ट अ साउंड आइडिया भी रहेगा तो पेपर में ये एलिमिनेट करने में हेल्प कर देगा, बिकॉज अगेन रीडिंग इट अगेन एंड अगेन डजंट मेक एनी सेंस एट दिस मोमेंट। तो अभी आप सिर्फ सुन लीजिए एंड ट्राई टू मेमोराइज नाउ एंड नाउ इटसेल्फ। ठीक है, निष्का एंड सतमना कॉइन्स यूज्ड इन दिस पीरियड। एंड देयर इज वेसा, दैट इज मर्चेंट स्ट्रीट, मर्चेंट स्ट्रीट इज वेसा। बलि साधका, ये हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया है, टैक्स कलेक्टिंग ऑफिशियल होता है, बिकॉज बाली और बलि इज टैक्स। गृहपति, head of household who can be a rich peasant also, griha house, pati head। महामृता, general term for officials। ग्राम भोजका, ग्रामीणी, ग्रामीणिका, it is a village head, नाम से it's very obvious। then there is सर्वाक्सतंत्रका, this destroyer of all क्षत्रियस, जिस महापद्मनंदा ने ये टाइटल यूज किया था, हु वाज द नंदा डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर। एकारत, वन सुजेरियन और ओनली वन किंग, ये टाइटल किस किंग ने सबसे पहले यूज किया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई विल गिव यू 2 to 3 सेकेंड्स का टाइम। जिन्होंने करेक्ट आंसर किया है एक्सीलेंट, जिन्हें नहीं पता था मैं कमेंट्स मैं बता देता हूँ, इट वाज महापद्मनंदा अगेन, ही यूज द टाइटल ऑफ एकारत। देयर इज हाइडेस्पस, जो झेलम को बोला जाता है। देयर वॉज वन बैटल ऑफ हाइडेस्पस, ये किसके बीच में हुई थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देयर वॉज अलेक्जेंडर, एंड हु वॉज द अदर पर्सन, डू लेट मी नो। नाउ लेट अस सी important terminologies from Buddhism perspective. There is Deepavamsa and Mahavamsa, they are chronicles,
ऑफ श्रीलंका ऑफ बुद्धिज्म, जिसमें हाउ अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म टू श्रीलंका उसका मेंशन किया गया है। Then there is anicca. There is a theory of impermanence in Buddhism. So remember this term anicca. That is impermanence. That is nothing is permanent in this world. Shramanas, the monks of Buddhism who acted as torchbearers of Dhamma. These were ascetic who lived in a severe and self-denying lifestyle in order to achieve the spiritual emancipation. Do remember Shramanas is not restricted to Buddhism. ये जैन में भी थे और आजीविकाज में भी थे। देन महाभिनिष्क्रमणा, that is great renunciation. It was the phase when Buddha left the house in the search of knowledge. Then there is महापरिनिर्वाणा, ये हमें पता है, death of enlightened one. तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाणा किस जगह पे हुआ था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पत्तिचा समुपदा, द लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन। टर्म याद रखिए, पत्तिचा समुपदा इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म and which meant law of dependent origin. Then there is Yogachara, which gives supreme importance to meditation and yoga. जैसे नाम में है योग चरा, योग, योगा और मेडिटेशन। Chintamani, a jewel capable of doing miracles in the form of granting wishes, but is generally related to granting of spiritual fulfillment, usually by Avalokiteshvara. तो अगर चिंतामणि बुद्धिज्म के रिलेटेड पूछा तो अवलोकितेश्वरा को याद रखना है। एंड व्हाट इज अनदर नेम ऑफ अवलोकितेश्वरा, ये आप मुझे कमेंट में लिख के दीजिए। एंड व्हाट वाज द सिंबल ऑफ अवलोकितेश्वरा? देयर वाज अ फ्लावर, टेल मी द नेम ऑफ द फ्लावर। शून्यता डॉक्ट्रिन, इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर जैनिज्म बुद्धिज्म में देखा है। इट वाज गिवन बाय नागार्जुना associated with Madhyamika sect, which means appearance are misleading. Then there is a term called Upostha, the ceremony of new moon or full moon. Thatgata, the liberated one, the one who is free from the cycle of death and birth. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, who was the प्रीडेसर बुद्धा। ये हमने जैनिज्म बुद्धिज्म वाले सेक्शन में देखा है, पढ़ा है। जिन्हें नहीं पता, डू वॉच दैट वीडियो टू, बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स 2025, क्योंकि दैट इज वन शॉट नोट्स ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अगर आपने उतना ही नोट्स कर लिया, आई गेस दैट वुड सफाइस फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स 2025। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हु वाज प्रीडेसेसर बुद्धा, क्योंकि फ्यूचर बुद्धा तो ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ लिया है। तो लेट अस फोकस ऑन प्रीडेसेसर बुद्धा ऑल्सो, इसके पहले वाले बुद्धा का नाम क्या था। देन देयर इज पतिमोक्खा, रूल्स टू बी फॉलोड बाय द मंक्स। तो पतिमोक्खा इज रूल्स फॉलोड बाय द मंक्स। उपासमपदा, द ऑर्डिनरी ceremony where the novice becomes a full-fledged monk. उपासंपदा, डू रिमेंबर कि एक आदमी फुल फ्लेज मंक कैसे बन जाता था, इट इज रिगार्डिंग दैट। देन देयर इज उपासकास और उपासका वर्शिपर्स ऑफ बुद्धिज्म, उनको उपासका बोलते हैं। प्रव्रज्या, सेरेमनी फॉर अ पर्सन गोइंग होमलेस इनटू द सर्च ऑफ विजडम और नॉलेज, इसको बोल रहे प्रव्रज्या। देन देयर इज पावराना, ये हमने ऑलरेडी पिछले सेशन में देखा था। दैट इज कन्फेशन ऑफ रॉन्ग डीड्स बाय बुद्धिस्ट मंक। इट इज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल जहाँ पे ये लोग कन्फेस करते हैं इफ द मंक्स, दैट इज बुद्धिस्ट मंक्स, हैव डन एनीथिंग रॉन्ग,
by them. अब जैनिज्म में आते हैं. फर्स्ट इज अनुव्रतास. These are lesser vows in Jainism, designed by lay followers, Shravaks and Shravikas. तो ये भी नाम याद रखें कि श्रावक और श्राविका इज अगेन रिलेटेड टू जैनिज्म, who seek to live a morally disciplined life while remaining in the society. Basically, they are part of the society, मतलब उन्होंने ब्रह्मचर्य नहीं लिया है, but they follow some principles or vows in Jainism. So they are, it is called as Anuvratas. And there is Arihant, it is blessed one or blessed one. Avdhi clairvoyant perception. So इसका मतलब है a mystic accomplishment which enables to know things beyond the reach of the senses. Just remember, Avdhi is related to Jainism. Then Jaina, one who has conquered his senses, जिसने कंट्रोल किया अपने सेंसेस को, is called as Jain or Jaina. कैवल्य, केवल ज्ञान को बोलते हैं, मीन्स ओमनिसेंस इन जैनिज्म. केवल ज्ञान जिसको एब्सोल्यूट नॉलेज मिल गया है इज नोन एज केवल ज्ञान और कैवल्य. देन देयर आर महाव्रतास, द 5 सुप्रीम एथिकल vows observed by Jain monks and nuns. There is Anuvrat, these are lesser vows, and Mahavrat, these are supreme vows, or bigger vows. They are absolute, strict, and far more rigorous than Anuvratas. They form the foundation of aesthetic life in Jainism and are essential for achieving liberation. There are 5 types of vows. Do let me know in the comment section. One is Brahmacharya, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है. What are the other 4? Do let me know in the comment section. And what does they mean? Even mention that. Mati Jnana, perception through activity of sense organs. Perception through sense organs. Do remember Mati Jnana. Nigranthas, free from all bonds. Do remember Nigranthas is not limited to Jainism. Buddhism में भी ये term आता है Nigranthas. That is free from all bonds. Asrav, flow of karma towards jiva. Flow of karma particles को बोलते हैं asrav. And as we all know, Jainism a big propounder of karma philosophy. Even during their supreme festival called Paryushan, they ask for forgiveness for all the karmas they have done or any pain they have caused to any life. So, Asraf here means flow of karma particles. And there is Siddhaloka, final abode of liberated one. Siddhalok is the final abode, house of the liberated soul who has got out of this karmic cycle of birth and rebirth and attained moksha. Samvara, stopping the flow of karma. From this word only came the term Samvatsari, which is the last day of Paryushan, where they ask for forgiveness by using the term Michhami Dugdam. So remember this, all the terms which I am speaking again and again: Samvara, Samvatsari, Michhami Dugdam. Do remember this term. And there is Nirjara, wearing out the accumulated of karma. Shravak Pratima, steps by whom a lay follower may achieve renunciation. It is a follower. Parivrajaka, wandering mendicants often associated with early Buddhist Jain tradition who renounced worldly life. तो याद रखना, परिव्राजक are wandering mendicants often associated with early Buddhist and Jain tradition who renounce their worldly life.
ये सेशन थोड़ा सा कंटेंट हैवी रहेगा, but please see to it that you complete this entire session. It will benefit you in some way or the other in your upcoming prelims 2025. चलिए अब आगे शुरू करते हैं मौर्यन एम्पायर से। पर्सी सन्नी दादा वेस्ट ट्रेजरी हेड। इसमें इंपॉर्टेंट है धम्मो महामंत्र ऑफिसर फॉर प्रमोशन ऑफ धम्मा। ये अशोका ने बनाया था पोस्ट कलिंग वॉर व्हेन ही बिकेम धम्मघोष, that is conquering by through dharma from Beri Ghosh, which was earlier conquering through war or violence. ये जो टर्म्स भी मैं साथ में बता रहा हूँ, धम्मा घोष, बेरी घोष, डू रिमेंबर दिस ऑल्सो। देन देर इज रावण अध्यक्ष, देर इज ऑफिसर ऑफ सॉल्ट डिपार्टमेंट। ये नाम तो नाम से समझ आ रहा है व्हाट इज स्वर्ण अध्यक्ष, गोल्ड ऑफिसर। देन देर इज शुल्क अध्यक्ष, कलेक्शन ऑफ टोल्स। शुल्क इज टैक्स और टोल्स, तो उसका अध्यक्ष वुड बी द कलेक्टर ऑफ टोल्स। बस इसमें से यही की इंपॉर्टेंट टर्म्स है, डू रिमेंबर दिस। देयर आर फ्यू मिसलेनियस टर्म्स टू। विश और आहार वर द डिस्ट्रिक्ट्स और यूनिट्स ऑफ प्रोविंस ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। समहर्ता वर द रेवेन्यू कलेक्टर। गुद पुरुषा स्पाइस। एज वी ऑल नो मौर्यन पीरियड में अशोका and the other kings had good number of spies because the kingdom was very large। तो सब चीज के बारे में जानने के लिए, पता रखने के लिए spies were essential। and it was also mentioned in अर्थशास्त्र of चाणक्य, जिसमें बोला था कि to have a good centralized control by a king he should have a good number of spies so that he should be aware of all the things happening in his kingdom। Then there was प्रतिवेदकास, that is informers। विष्टि, ये भी यूपीएससी ने पूछा है, so remember this is forced labor। forced labor को बोला जाता है विष्टि। Then there is श्रेणीस, also called as निगम्स। गिल्ड्स हमें पता है, श्रेणीस पता है, बट एक और नाम है इनके लिए निगम्स। डू रिमेंबर दिस। They are economic and professional organization of merchants, artisan, traders, and they played a crucial role in trade and banking। और ये लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में भी इन्वॉल्वमेंट था। तो बेसिकली इट वाज अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स और ट्रेडर्स एंड दे हैड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस and they were supported by all the dynasties as trade or economy was dependent on shrenis, that is guilds। Then came the post-Mauryan period। Devputra, it was the title adopted by Kushan, rulers of the ancient India, which signifies their divine origin। अपनी अथॉरिटी डेवलप करने के लिए अब किंग्स ने अलग अलग नाम यूज करना चालू किया रिलेटिंग टू गॉड। तो देवपुत्र वॉज यूज बाय कुशान्स। एंड देयर इज देवकुल, अ टेम्पल डेडिकेटेड टू डेड मोनार्क ऑफ एंशिएंट इंडिया। सो देवकुल इज अ टेम्पल डेडिकेटेड टू डेड मोनार्क। किसी बड़े किंग की डेथ हो गई है तो देवकुला बना है। इट इज अ टेम्पल जहाँ लोग आके वर्शिप करते थे। So basically now you can see they consider themselves equivalent to God or the shadow of God to create their dominance। Khatiya Dapa Man Mada, a title adopted by Gautamiputra Satkarni who belonged to Satvahana dynasty, which means the one who destroyed all the Kshatriyas। सेम ऐसे ही टाइटल महापद्मनंदा ने भी यूज किया था जो हमने ऊपर देखा है। तो ये बताइए कि सतवाहना डायनेस्टी कौन से रीजन में प्रोमिनेंट थी इंडिया के।
क्या लोकेशन था उनका, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देन देयर इज श्रेणीबाला, वॉरियर गिल्ड्स इन एंशियंट इंडिया। Valaikars, this is important. Valaikar are troops who served the king or state in ancient Tamil Nadu. So remember Valaikaras. Then there is Gaulamika, a village administrator in ancient India. Gaulamikas. Denari और दिनारी, दिनार से रिलेटेड है. So we have studied dinar is gold coin. Roman coins issued in the gold form. It is called as denari. Karshapana is a copper coin used in ancient India. पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में करशपना का यूज बहुत बढ़ गया था. इट इज अ कॉपर कॉइन यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया. देन देयर इज पाम चनेकम, अ कॉइन यूज्ड बाय 5 गिल्ड्स इन एंशिएंट इंडिया. So palm chanekam is also a coin. Do remember. Puran, a silver coin used during Kushan period in ancient India. तो कुशान्स ने सिल्वर कॉइन भी निकाला था जिसका नाम था पुराण. And there is Suvarnadweep, a region of Southeast Asia which was known for its gold production in ancient time. और सुवर्णद्वीप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को भी बोला जाता है इन एंशिएंट इंडिया. गतसतसाई, a grace treaty of rural love written in प्राकृत by a सतवाहना रूलर इन एंशिएंट टाइम. तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे गत सतसाई किसने लिखा है. ये हमने पिछले सेशन में भी डिस्कशन में सुना था, बट ये आप मुझे वापस बताएंगे कि किस किंग ने लिखा है गत सतसाई. एंड देयर इज रत्नदीप, एन आइलैंड नेशन लोकेटेड इन इंडियन ओशन which is identified with modern day Sri Lanka. So Ratnadeep, Sri Lanka, do remember. And there is Magadh. ये भी यूपीएससी ने पूछा है. So remember, मगध रीजन नहीं है ये, मागध है ये. It refers to a class of professional bards, chronicles in ancient India. अब आते हैं संगम डायनेस्टीज में. एंड संगम इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव, क्योंकि संगम और विजयनगरा ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स 2025. कोनमाई कोंडा, किंग्स ऑफ किंग्स, ये टाइटल यूज किया जाता था बाय द किंग्स. कोनमाई कोंडन. ब्रह्मदेय, लैंड गिफ्ट टू ब्राह्मण्स. टू रिमेंबर, ब्रह्मदेय इज लैंड गिफ्ट टू ब्राह्मण्स. नगरकानी, अर्बन रेवेन्यू यूनिट. अर्बन रेवेन्यू यूनिट को बोलते थे नगर, नगर कानी. नाडू, द लोकेलिटी कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल सेटलमेंट. तो ये विलेज से बड़ा था जो कंप्राइज मल्टीपल ऑफ विलेजेस जिसको नाडू बोलते थे. देन देयर इज वटाकीरुतुअल, रिचुअल सुसाइड ऑफ डिफीटेड किंग. ये भी यूपीएससी ने पूछा है. वटाकीरुतुअल. कलंजू, कलंजू इज द गोल्ड कॉइन ऑफ चोलास. डू रिमेंबर, कलंजू is a gold coin of cholas. Karai are land taxes. Karai are land taxes. Do remember. Then there were different types of lands. One was Mulai, that was pastoral tract. Marutam, wetland, and Palai were desert. Then there were two others, Kurunji or Kunji, mountain region, and Neetal as coastal region. तो ये पांचों नाम याद रखना, मुलाई, मरुतम, पलाई, नीतल एंड कुरुंजी और कुंजी. वेलार और वेलालार were the rich peasants. And Vaishyar, as the name suggests, were traders. वैश्य से word आए वैश्यार. There is Akam, that is love poems, and then there is another term called as Puram, that is poem defining war. So Akam and Puram. Akam is love poem, Puram is war poems. Orar were called as spies, Amaichar were ministers, and Araghatta, Persian wheel, to collect water. So Araghatta as a term भी UPSC ने पूछा है, so do remember that. Then let us come to Gupta age, which is called the golden age of India, golden phase of India. So इसमें important है उपारिका,
ही वॉज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द किंग एज द प्रोविंशियल गवर्नर। तो गवर्नर को बोला जाता है उपारिका, विच वॉज अपॉइंटेड बाय द किंग हिमसेल्फ। सामंत, as name suggests, feudal lords or feudal chiefs. Mahatara, a non-official and possibly a representative of the people. Mahatara is non-official and possibly a representative of people. And then there is Mahapilupati. Do remember this term, Mahapilupati, that is chief of elephant corps. Bhukti is a province in Gupta age. Bhukti province होता है। कुल व्यापा एंड द्रोण व्यापा यूपीएससी ने पूछा है। And Kulya is a water channel or irrigation, and Vapa is sowing or cultivation, likely referred to as land irrigated by one water channel or a standardized unit of cultivable land. So do remember Kulvyapa and Dronvyapa. Then we come to Palas and Pratihars. Pala, Pratihar, and there was another dynasty जो constantly war में थे during later phase of ancient India. तो एक और डायनेस्टी कौन सी थी और कौन से रीजन के लिए वो वॉर कंटिन्यूसली हो रहा था? इट इज सेड टू बी कंटिन्यूड फॉर मोर देन 100 years। तो ये कौन सी जगह थी एंड हु वाज द अदर डायनेस्टी? डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड एज वी ऑल नो, पालास वर फाउंडर ऑफ नालंदास यूनिवर्सिटी। तो कौन से किंग ने फाउंड किया था नालंदा यूनिवर्सिटी? ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे। सो भुक्ति प्रोविंस होता है अगेन इन पाला ऑल्सो। मंडल और विसया वर डिस्ट्रिक्ट। So do remember Bhukti is province, Mandala is district. Uparika, the governor of Bhukti. तो गवर्नर होता है। एंड विषयापति द हेड ऑफ विषया, दैट इज डिस्ट्रिक्ट। चोलास और इंपीरियल चोलास ऑफ साउथ इंडिया। ये पूरा फाइल आपको एज इट इज मिल जाएगा आईएएस विंग्स पे, आईएएस विंग्स के टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी कोई डेटा या फिर नोट्स आपको चाहिए जिसका हम लेक्चर ले फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स 2025, ये आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। तो विल मेक श्योर जितना जल्दी आपको उसका डॉक्यूमेंट या फिर वीडियो मिल जाए तो विल मेक श्योर वो आपको मिल जाएगा टाइमली। So please do mention that too in the comment section. So let us start with the imperial Cholas of the south. Mandalam were the provinces, Nadu were district, Kuram a group of villages. ये तीनों याद रखना सीक्वेंस में। Mandalam is province, then comes Nadu, then there is Kuram. Velan Vegai, land of non-Brahman peasants proprietary. Velan Vegai were land of non-Brahmins. Brahmadev, as we have seen, land gifted to Brahmanas. Shala Bhoga, Shala means school. So it's something related to school, land for maintenance of school. Land given for the maintenance of school is known as Shala Bhoga. Devdana and Tirumatukani, land gifted to temples. देवदान तो इजीली समझ आता है कि देव के लिए दान किया है, तो लैंड गिफ्टेड फॉर टेम्पल्स। बट डू रिमेंबर तिरुनामत्तुकानी इज लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। पलिछंदम इज लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन। जैन इंस्टीट्यूशन को जो लैंड दिया गया था उसको बोला जाता है पलिछंदम। देन देयर इज अंजुवनम, फॉरेन मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अंजुवनम इज फॉरेन मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये टर्म इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, सो डू रिमेंबर अंजुवनम इज फॉरेन मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड देयर इज घटिकास, colleges generally attached to temples. Ghatikas are colleges generally attached to temples. Agrahatta, again Aragatta, Agrahatta, both are Persian view. Edangai, caste grouping है, consisted mainly of artisan and trading groups, इसको बोलते थे एडंगाई। वलंगाई एग्रीकल्चरल ग्रुप को बोला जाता है। कड़माई इज अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। शाला भोगा
ये हमने इधर पढ़ लिया ऑलरेडी। वेलालाज आर फार्मिंग ग्रुप्स, वलंजियर आर मर्चेंट गिल्ड्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वेलालाज आर फार्मिंग, एलन वलंजियर आर मर्चेंट, वरियम कमिटी ऑफ मर्चेंट्स, एंड हुंडी a negotiable instrument like a bill of exchange or promissory notes। ये भी यूपीएससी ने पूछा है, so do remember हुंडी। एंड वेट्टी इज अ फोर्स्ड लेबर। हमने एक और टर्म फोर्स्ड लेबर के लिए ऊपर पढ़ा था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लेट अस सी हाउ यू क्विकली रिकॉल द टर्म्स। तो फोर्स्ड लेबर हमने ऊपर भी पढ़ा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इधर यहाँ वेट्टी बोलते हैं, ऊपर हमने जो पढ़ा है उसे क्या बोलते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। बिफोर स्टार्टिंग विद दिल्ली सल्तनत, मुझे ये बताइए अमोघ वर्ष, जो कि एक प्रोमिनेंट किंग था ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, ही वॉज द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। तो इन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया था, तो व्हाट वाज द प्लेस विच ही मेड द कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूटा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रिगार्डिंग दिल्ली सल्तनत, दर उल शिफा हॉस्पिटल्स फॉर पुअर, दीवाने खैरत डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी, दीवाने बंदगान डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। मुझे बताइए दीवाने बंदगान किसने स्टार्ट किया था। ही वॉज अ प्रोमिनेंट किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो किसने स्टार्ट किया था ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। बारिज आर इंटेलिजेंट ऑफिशियल्स एंड मुनियान्स आर सीक्रेट स्पाइस। तो स्पाइस के लिए हमने दो तीन वर्ड सीख लिए, एक ओरार से और एक और क्या था, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। फास्ट एक्टिव रिकॉलिंग कीजिए, हमने अभी देखा था, ट्राई टू रिमेंबर इट। उलेमास आर स्कॉलर इस्लामिक सेक्रेड लॉज, scholar of Islamic sacred laws were called ulemas। And there is तक्कवी, loans to farmer cultivated, इसको स्टार्ट किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, तक्कवी लोन्स देना। देन ममलुक, स्लेव्स या ओन्ड अ मिलिट्री कास्ट। सो पहली डायनेस्टी भी दिल्ली सल्तनत वाज कॉल्ड एज ममलुक स्लेव डायनेस्टी और ममलुक डायनेस्टी। देन देयर इज जवाबित, सुल्तान्स ओन रेगुलेशन टू सप्लीमेंट मुस्लिम लॉज। तो ये याद रखिएगा, जवाबिदा सुल्तान्स ओन रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन टू सप्लीमेंट मुस्लिम लॉज। गज ए सिकंदरी, अ टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ यार्ड। गज जो आज भी हम यूज करते हैं, गज और गज, तो गज ए सिकंदरी इज अ टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ यार्ड, तो डू रिमेंबर दिस। एंड यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है रिगार्डिंग द मेजरमेंट ऑफ लैंड के टर्म्स के लिए। कुलाधरन ऑलरेडी आस्क्ड बाय यूपीएससी, it is a pointed cap word by Sayyads। Then there is Chahalgani system, Chahalgani, that is system of 40 या 40 prominent leaders, तो या 40 इक्तदार्स। ये सिस्टम किसने स्टार्ट किया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बनाएंगे। इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड जिसको ये आता है दे हैव अ गुड होल्ड ऑन देयर मिडिवल पोर्शन, सो डू मेंशन चहलगानी सिस्टम किसने स्टार्ट किया था। Then there is Chehra and Dag, that is branding of horse is called Dag, and detailed description of each soldier, basically ID card is called Chehra, और ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। That is the method of Chehra and Dag as an identification proof। प्रोविंशियल ऑफिसर्स को बोलते थे मुफ्ती और वाली, that is प्रोविंशियल गवर्नर और इक्तदार। Shahana A Pil, superintendent of royal elephants, and there is Shikdar, officials in charge of land measuring Shik। So Shikdar is land measuring, and Shik आप याद रख सकते हो is a term for land। इक्तदार इक्ता ये हमें ऑलरेडी पता है। जिजिया are the tax on non Muslims।
तो जिजिया इज टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स। खराज लैंड टैक्स होता है। ज़कात is an income of Muslims which was spent for welfare of Muslim subjects and their religion. तो ये मुस्लिम लोग अपने प्रॉफिट में से या कमाई में से दे गिव सर्टेन परसेंटेज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। एंड देयर इज तनका सिल्वर कॉइन, जित्तल कॉपर कॉइन, आधा कॉइन्स करके भी यूज होता है, दैट इज 50% जित्तल। खलीसा लैंड अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सुल्तान। इनाम लैंड रिलीजियस लीडर या इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता था। ये रहा तुर्कन है चहलगानी, दैट इज चहलगानी जो हमने इधर पढ़ा है, क्लास ऑफ 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर। और इसको डिस्ट्रॉय भी किसने किया था ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड ही स्टार्टेड वेरियस अदर, दैट इज आयरन एंड ब्लड पॉलिसी भी उस किंग ने ही चालू किया था, उस सुल्तान ने ही चालू किया था। सो व्हाट वाज द नेम ऑफ द सुल्तान, डू लेट मी नो। जिलेलाही गॉड शैडो ऑन अर्थ। निबायत एक खुदा ही, रिसिपिएंट ऑफ डिवाइन ग्रेस। Sajda and parables are types of salutation. Zimmi are the protected people under Muslim law. तो जिम्मी टैक्स भी देना पड़ता था कुछ लोगों को to get protection under Muslim rule. And arabesque, a geometric and floral design. Then come Marathas. Marathas इस साल के लिए very important for your upcoming prelims. स्पेशली चौथ, सरदेशमुखी, ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए किस लिए यूज होते थे और कहाँ यूज होते थे। एंड यहाँ पे प्रोविंस को बोला जाता था प्रांत। चिटनीस वॉज करस्पॉन्डेंस क्लर्क, डू रिमेंबर चिटनी। बारगीज वर द हॉर्समैन विच आर पेड फ्रॉम स्टेट एक्सचेंज, तो बारगीज हॉर्समैन होते थे जिसको वो हायर करते थे। एंड सिलादार्स आर सोल्जर। Chout, as name suggests, something of 1/4 or 25% of land revenue to be paid to Marathas to avoid Maratha raids in the outside region. Then there is Sardeshmukhi, an additional levy of 10% over lands of Maharashtra, which were formed of the Mughal Empire, but over which Marathas claim their hereditary right. तो चौथा और सरदेशमुखी वो लोग दूसरे रीजन पे, मतलब मराठास के आउटसाइड वाले किंगडम्स पे वो लोग क्लेम करते थे। And there is Kathi, that is unit of measurement. Do remember Kathi is a unit of measurement, land measurement. Vijayanagara important, another important topic. Gram, Nadu, Mandalam, we have already seen. Then there is Nayankara system of provincial administration. So there is a Nayankara system and then there is Iyengar system of village administration. ये प्रोविंस के लिए है, ये विलेज के लिए है। There are different coins in Vijayanagara. Varahas or pagodas, they are gold coins. So remember, Varahas or pagodas are gold coins. Jital again copper coins and Tar were silver coins. Panam, ये भी यूपीएससी ने पूछा है। Chief gold coin of Vijayanagar Empire was the Varaha or pagoda, and the Partha was half of Varaha. Panam was 1/10 of Partha. तो ये सारा इतना याद रखने का जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर Panam is a type of coin during Vijayanagara. Then there is Ashtadhiggaja, the 8 celebrated poets of Telugu. पेडना जिसने मनुचरितम लिखा है, तिमैया जिसने परिजाता अपभ्रम अपहराम अपहरणमा रणमा लिखा है, एंड वेरियस अदर। एंड अनदर फेमस इज तेनाली रामकृष्ण और तेनाली रामा जिसने पांडुरंगा महामत लिखा है। मराठास में भी जैसे यहाँ अष्टदिग्गजय, वहाँ पे भी एक सिस्टम है, उसका नाम क्या है, मराठास वाला सिस्टम का नाम बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। देन भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। नयनार्स डिवोटी ऑफ शिवास, अलवर्स डिवोटीज ऑफ विष्णु। ये जस्ट फैक्ट्स है, प्योर फैक्ट्स है, जस्ट डू रिमेंबर। देन देर इज तिरुमराई, कंपाइलेशन ऑफ हिम्स ऑफ नयनार्स by highest priest of Rajaraja Chola I, Nambiyandar Nambi.
तो तिरुमराई याद रखना आप, कंपाइलेशन ऑफ हिम्स ऑफ नयनार से। दिव्य प्रबंधा कंपाइलेशन ऑफ हिम्स ऑफ अलवर सेंट। तो दिव्य प्रबंधा बिलोंग टू अलवर सेंट। निर्गुण भक्ति बिलीव इन फॉर्मलेस गॉड और विदाउट एट्रीब्यूट्स, एंड सगुण इज विथ एट्रीब्यूट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स फ्रॉम एंशियंट टू मिडिवल इंडिया। फर्स्ट इज ऋग्वेद. इट इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट ऑफ all four Vedas and one of the oldest religion texts in the world, which was composed around 1500 to 1200 BC, जिसमें 1028 hymns है to various deities such as Indra, Agni and Varuna. Gayatri mantra is also presented in Rig Veda. फिर आता है सामवेद. It is a musical form recognized as the first book on music. Then there is Yajur, consists of rituals and sacrifices to be performed by the Brahmanas. And Atharva Ved deals with charms and spells. Then there is Samhitas. Samhitas are the oldest and most foundational layer of Vedic text, consisting of collection of hymns, mantras, prayers. They form the core of the four Vedas. Then there is Brahmanas. Brahmanas are the prose texts explaining rituals, ceremonies, and sacrificial practices mentioned in Samhita. Aranyaka, category of ancient Indian texts that form part of Vedic literature. It is also known as forest texts because they were studied by sages in the solitude of forest. इसमें philosophical dialogues होते थे, debates होते थे of the people rather than just text or something like that. It had a philosophical dialogues. Upanishads are philosophical texts that explore nature of reality, the self, Atman, and ultimate reality, that is Brahman. They mark the end of Vedic phase and are often referred to as Vedanta, the end of Vedas. So Upanishad को Vedanta भी बोलते हैं because it was the end of Vedas. Then महाजनपद एरा में आया था Vedangas. They are the limbs of Vedas whose study was necessary to understand Vedas properly. तो इसको लिखा था सूत्रास के फॉर्म में, that is condensed prose style, intended for memorization. So there are 6 Vedanganas. Do remember. शिक्षा जो होता है फोनेटिक्स, कल्प दैट इज रिचुअल्स, व्याकरण एज द नेम सजेस्ट ग्रामर, निरुक्ता एटिमोलॉजी, छंदास metrics, and Jyotisha astronomy, not astrology. Do remember it is astronomy. Then there is Ashtadhyayi written by Panini, a foundational text of Sanskrit grammar. Sanskrit grammar की बुक है ये अष्टाध्यायी. It was written by Panini. Jatakas, part of Khodaka Nikaya in Buddhism tradition. These are not attributed to single writer but are collection of stories. So do remember Jatakas. Arthashastra was written by Kautilya or Chanakya in Sanskrit. The Arthashastra is combining practical advice for rulers covering an array of topics. तो अर्थशास्त्र हमें सबको पता है. And there is Indica. It was written by Megasthenes, providing a detailed account of Mauryan kingdom. एक और बुक है जो गुप्ता पीरियड के टाइम लिखा गया था, दैट इज मुद्रा राक्षसम बाय विशाखा दत्ता, बट इसमें प्रोवाइड किया गया था नैरेटिव ऑफ चाणक्य स्ट्रेटजी अगेंस्ट चंद्रगुप्त एनिमी, कि हाउ चाणक्य हेल्प चंद्रगुप्त मौर्य टू कम इन पावर. ये मुद्रा राक्षसम विच वॉज रिटन बाय विशाखा दत्ता, इसमें मेंशन किया गया है. Then there is Sangam literature. First is Tolkapiyam. It is the most ancient text of Tamil grammar and one of the oldest works in Tamil literature. It was written by Tolkapiya. It covers grammar, phonetics, rhetoric, and poets. As Sangam suggests, there was a gathering of
स्कॉलर्स। तो ये संगम, 3 संगम टोटल हुए थे। तो कौन से डायनेस्टी ने इसको पैटर्न किया था, ये आप मुझे पैटर्नेज दिया था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। विच वाज द डायनेस्टी दैट गिव पैटर्नेज टू संगम। नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट टॉपिक, एटुटोगाई। एटुटोगाई, also spelled as Etutogai, is a collection of 8 anthologies of classical Tamil poetry. तो याद रखना ये पोइट्री है एटुटोगाई। Then there is Pattu Pattu, or also spelled as Pathu Pattu, is a collection of 10 idylls, is a one of the two major categories of Sangam literature, the other being Etutogai. Patu Patu consists of 10 long poems that celebrate themes like love, war, nature, lives of kings and heroes. Then one important book, that is Tirukural, written by Thiruvalluvar, ethical, philosophy, love and political work, all are mentioned in Tirukular. Then there is Silapadikaram, written by Ilango Adigal. It is a story of Madhavi. It is a Madhavi and Kovalan. Then there is Manimekalai. Ilango Adigal was Jain and brother of a prominent king. तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो कौन से किंग का भाई था या कौन से डायनेस्टी वाला किंग था। Then there is Manimekalai, is one of the 5 great epics of Tamil literature and is celebrated Buddhist epic composed by poet Sathanar around 6th century CE. It is a sequel to earlier Tamil epic Silapatikaram and focuses on the life of Manimekalai, the daughter of Kovalan and Madhavi, the protagonist of Silapatikaram. Here there is Kanagi too, who was the wife of Kovalan. So there is Kanagi cult. ये किस चीज रेफरेंस पे आया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बनाएंगे। Then Gupta literature, Aryabhatiya, written by Aryabhatta, explain the occurrence of solar and lunar eclipse. तो Aryabhatiya, Aryabhatta. Leelavati by Bhaskaracharya, book on mathematical system. भास्कराचार्य ने लिखा है लीलावती। Then there is Panch Siddhanta, written by Vara Mihira, that translates to 5 treatises or 5 school of astronomy. It summarizes and compares the 5 major astronomical systems Siddhantas prevalent in India during that period. So Pancha Siddhanta, Vara Mihira. Then there is Abhijanam Shakuntalam, ये हमें पता है, written by Kalidasa. And Kalidasa was court poet of which Gupta king? Do mentioned in the comment section. Vikram Urvashiyam or Vikram Urvashi is also a play written by Kalidas. Malvika Agnimitra, it was the story of Agnimitra, the son of Pushyamitra Shunga, and story of Malvika and Agnimitra. And there is Kumar Sambhava, a epic poem written by Kalidas, Sanskrit epic poem that narrates story of birth of Kartikeya, also known as Skanda or Kumara. Raghuvansham, again a Kalidas, written Sanskrit epic poem. Ritu Samhar, Meghadutam, these were all written by Kalidas. Then there is Mrichakatika, Sanskrit literature written by renowned playwright Shudrak. इसमें चारुदत्त एंड वत्स सेना एक्सप्लोरिंग द इनका स्टोरी है एंड द एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ इट आर लव, सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिकल इंट्रीग. Amarkosh, written by Amar Simha, is India's first thesaurus. Now let us see few medieval literature. उत्तरमा मरिक चरित्र और मालती माधव, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है. कौन है इसका ऑथर, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ये हमने हमारे पिछले सेक्शन में देखा है.
दैट इज 50 इंपॉर्टेंट PYQs ऑफ हिस्ट्री में देखा है हमने ये, तो डू मेंशन दिस। मालती माधव एंड उत्तरमा चरित्र। देन देयर इज पृथ्वीराज रासो बाय चंदा भरदाई, ब्रज भाषा में लिखा है। अ पोएटिक अकाउंट ऑफ लाइफ ऑफ पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज रासो, चंदन भरदाई, ठीक है। एंड देयर इज तुगलकनामा, आमिर खुसरो ने लिखा है। अ पोएटिक अकाउंट ऑफ रेन ऑफ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलकनामा, आमिर खुसरो। तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बरानी। डू रिमेंबर दिस, फोकसिंग ऑन फिरोज शाह तुगलक, तारीख फिरोज शाही। आईने अकबरी, अबू फजल, अबू फजल ने और एक बुक लिखी है, डू मेंशन दैट टू। वन इज आईने अकबरी एंड व्हाट इज अनदर वन। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड है अकबर के एम्पायर का। मुंतखब उत त्वारिक या तवारिक बाय अब्दुल कादिर बदौनी, अब्दुल कादिर बदौनी। अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर ऑफरिंग एन ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव। So do remember मुंतखाब उत तवारिक बाय अब्दुल कादरी बदौनी। पातशाहनामा, ये भी हमने पढ़ा है, अब्दुल हामिद लाहौरी। शाहजहां के रेन के बारे में बात होती है। एंड वन इम्पोर्टेंट, अमुक्त मर्यादा, which was written by Krishnadev Raya himself in Telugu. Poetic work by Vijayanagara king focusing on devotion and governance. So in this way we have completed many of the terms regarding AMAC and few literature too. ये point of time पे this would suffice for your upcoming prelims 2025। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में डू मेंशन, और नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन से वेरीफाई कीजिए। एंड इवन इफ यू डोंट फाइंड द आंसर्स, डू गूगल देम, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे सारे नॉलेज के साथ विच वी हैव प्रोवाइडेड इन दिस डॉक्यूमेंट। और ऐसे ही हम वीडियोस और लाते रहेंगे प्रीलिम से पहले तक। सो कीप फॉलोइंग IAS विंग। थैंक यू।